Hello and welcome to The Print. I am Maushami Dasgupta, Deputy Editor with The Print. A fortnight back, I travelled across Orissa to bring election stories and interviews from the ground. Many of you may have seen these on our websites and YouTube channel. During the course of my travels, I also visited Kalahandi, a district in the western part of Odisha, which was once infamous for hunger deaths and starvation. But the district has come a long way since then. To an outsider, Bhawanipatna, the district headquarters of Kalahandi, looks like a town eager to make up for lost time. It bustles with activity, in stark contrast to a decade and a half ago when it was a town in the back of beyond with decrepit infrastructure, poor connectivity and lacking any visible development. It would take days to reach Bhawanipatna from neighbouring towns of Kalahandi. Abject poverty and hunger had become the leitmotif for the whole of Kalahandi district. Cut to today, Bhawanipatna and much of Kalahandi seem to have undergone a 360-degree transformation with infrastructure development and implementation of a plethora of welfare schemes, both state and central, resulting in improved socio-economic indicators. Kalahandi goes to polls on 13th May in the fourth phase of the ongoing Lok Sabha elections. A senior district administration official told The Print that over 90% of the villages and interior areas in Kalahandi are now connected by all-weather Pakka road. To add to that, paddy procurement from the district is now the second highest among districts in Odisha after Bargarh. A district which once was unable to feed its own people is the highest contributor to the state public distribution system, the official said, adding that increase in agriculture income has had a trickle-down effect. With people's income going up, their spending power has also gone up. He added that development is not centered only around Bhawanipatna. There are 13 blocks in Kalahandi. By and large, all blocks have seen good development over the years. But being the district headquarters, Bhawanipatna takes the cake. An airport, a swanky bus stand, smart parks, white cleaned roads, open gyms, malls and women-run outlets are just some of the highlights. The most visible changes in Kalahandi, besides connectivity, have been witnessed in the sectors of education and medicine. 20 years back, there were hardly any educational facilities here. Now, you have the Kalahandi University, multiple private colleges, including college each for medicine and engineering. सोशल फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कलाहांडी में। पहले कलाहांडी में 1960 में गवर्नमेंट कॉलेज नाम से ये कॉलेज खुला था। अभी ये कॉलेज ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज से नाम से पहचाना गया, अभी कलाहांडी यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना गया और अभी इसको माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी के नाम से नामित किया गया है 2023 में। तो इसमें अभी आपका बहुत सारा पीएचडी कोर्सेज खुल गया है, बहुत सारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज खुल गया है, 23 यूजी कोर्सेज है। ऐसा आप सोचेंगे कि कलाहांडी यूनिवर्सिटी ये कलाहांडी का एरिया का एक तो बड़ा एजुकेशनल हब है जहाँ पे स्टूडेंट लोग को फैसिलिटी मिल रहा है वो आके यहाँ पे हायर एजुकेशन ले। तो कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं जनरली भवानीपटना के जैसा कलाहांडी में 13 ब्लॉक है। हाँ। और नयापड़ा में हमारा 5 ब्लॉक है। हाँ। वहाँ से स्टूडेंट आते हैं और साइड बाई डिस्ट्रिक्ट से भी रायगढ़, नवरंगपुर, जयपुर उधर से भी स्टूडेंट लोग आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और अभी तो पीएचडी खोल गया, पीएचडी होने के बाद ऑल ओवर ओडिशा, इवन ओडिशा से बाहर से के भी लड़के लोग पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। Bhatangpadar, previously a lackluster village located some 8 km from the district headquarters, is showing the way. Time taken to reach the hamlet from Bhawanipatna is now 30 minutes from the earlier 2 hours. Pratap Bibhar's family of 6 lived in a mud house in Bhatangpadar till the year 2000. Bibhar told The Print how today his family is living with a dignity that is their right. Welfare schemes for the poor, free ration, disability pension,
family health card and free education combined with his own hard work has resulted in this transformation. मेरा नाम प्रताप विभार, ये मेरे मम्मी हैं मोतीराम विभार, ये मेरे पापा हैं। हम उड़ीसा राज्य के हैं। हमारे गांव का नाम भटांगपदर, ब्लॉक लांजीगढ़, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा ये आपका घर है? जी, ये मेरा घर है। हाँ। आप यहीं पे बड़े हुए हैं? क्या पढ़ा है? जी, हमारे गांव यही से, ये भटांगपदर ही हैं। अभी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ। कहाँ से? कलाहांडी यूनिवर्सिटी भवानीपटना से। अभी भी मेरा प्रिपरेशन जारी है अच्छे जॉब पाने के लिए। तो अभी क्या करते हैं? अभी पीआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जोगाणु सहायक का। हाँ। पास में ही हमारा ऑफिस है। हाँ। और जब मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, उस समय का जर्नी बताइए। आपके घर में कितने लोग हैं, कितना मतलब घर कैसे चलता था? जी, हमारे घर में 5 मेंबर थे उस समय। घर मेरे पापा और मम्मी दोनों मिलके चला रहे थे। क्या करते थे? वो लेबरर थे, डेली वेजेज वाला। वो काम करके ही मेरा पढ़ाई करवा रहे थे। ऐसे तो मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया 1 से 5 तक। उसके बाद मेरा ड्रॉप हो गया क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मैं 2 साल पढ़े नहीं किया। 2 साल बाद एक प्राइवेट एनजीओ वाला एक स्कूल यहाँ पे खोला गया। वहाँ के जो टीचर अच्छे से गाइड किए, अच्छे से प्रिपेयर हुआ और मैं नवोदय में सिलेक्ट हो गया। ये 2009 के बात है। उसके बाद मैं 6th क्लास से +2 तक JNV नरला से ही पढ़ाई किया। उसके बाद 2014 में मेरे पापा का एक्सीडेंट में वो हैंडीकैप हो गए। बहुत प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे। अकेले मम्मी ही घर का जो मेंटेनेंस था वो संभाल रही थी। तो 2016 में जब मैं पास आउट हुआ +2 करके नवोदय से, तो मैं काम करके ही मेरा जो एडमिशन था हाँ कॉलेज में वो सब किया। और 2016 में मेरा मम्मी का मेडिकल प्रॉब्लम निकला, तो उस समय बहुत दिक्कत हुआ। तो मैं एक टोन क्रॉसर ज्वाइन कर लिया। ऐसे स्टडी कंटिन्यू था और मैं उधर काम भी कर रहा था। उसके बाद 2018 में इधर नोटिफिकेशन आया पंचायत का कि जोगाणु सहायक का जो पोस्ट है वो खाली है। तो उधर मैं अप्लाई किया और मार्क बेसिस से सिलेक्शन हुआ। तो मैं 2018 में ही जॉइन कर लिया। उसके बाद अभी आपको कितना मिलता है? मतलब वहाँ पे तो ऑनरेरियम मिलता होगा। जी, तो वो 8,000 रुपया महीना मिलता है। और अभी आप ही अपने घर के में सोल अर्निंग मेंबर हैं? हाँ, अभी मेरे कमाई से ही घर का जो आवश्यकता है वो पूरा किया जाता है। अभी मेरा पढ़ाई भी जारी है। ऐसे तो बेस बना हुआ है, कुछ करना है आगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। The village, with over 93% scheduled caste and scheduled tribe population, according to the 2011 census, also boasts of a 100-bed hostel for SC/ST women, smart classrooms and solar lights, among other facilities. The village was adopted by BJD Rajya Sabha MP Sujit Kumar under the Sansad Adarsh Gram Yojana in 2020. Well-laid road network and construction boom aside, there is a social transformation underway in Kalahandi. More women are confidently stepping out of their homes for employment.
Women-run cafes are a common feature in Bhawanipatna now. Shops hire women salesperson as a matter of routine. Pushpa Shukla, who runs a Millet Shakti outlet in Bhawanipatna, is one such beneficiary. Millet Shakti is a joint initiative under the Odisha Millets Mission and state government's Department of Mission Shakti to empower women entrepreneurs and promote millet consumption through self-help groups. Launched by Odisha CM Naveen Patnaik in 2001, it is one of the oldest state-sponsored programs for empowering women through self-help groups. मेरा नाम पुष्पा शुक्ला है। नमस्ते, मैं कल्याणी एसएसजी ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ। मैं आज से 3 साल पहले इस ग्रुप में ज्वाइन करी। ये ग्रुप 2003 से चल रहा है, 20 साल 21 साल पुराना है, पर मेंबर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब हम इसमें न्यू लेडी से ज्वाइन करी, मतलब नई बहू है जो अभी के समय का समझ रही मिलेट को अच्छे से बता सकती है लोगों को। जब हम लोग ज्वाइन किए तो ये मिलेट आउटलेट का टेंडर निकला, हम लोग इसको डाले तो ये हमको मिला हमारे ग्रुप को। तो 25 मई 2023 इसका ओपनिंग हुआ। तब से हम लोग 1 साल होने जा रहा है करीबन ये मिलेट आउटलेट चला रहे हैं। और लोगों को मिलेट जो हमारा छुप गया था, यानी लोग मिलेट को नहीं जानते, जो उतना पहले के लोग खाते थे, अभी के लोग उतना मिलेट को नहीं जान रहे थे, हम भी नहीं जान रहे थे। जब हमको मिलेट का ट्रेनिंग दिया गया, इसके बारे में बताया गया कि इसके कितने फायदे हैं हमारे लिए, जो अभी कम उम्र के बच्चे भी शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट हो जा रहे हैं, तो अगर हम मिलेट खाना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम लोग इससे चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, लोगों को समझा सके कि मिलेट के फायदे कितने। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जब तक चला सकती हूँ मिलेट को चलाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? हम लोग 10 मेंबर है। तो 10 मेंबर ये आउटलेट है, यहाँ हमको किचन की सुविधा नहीं है, तो जो इंडक्शन है बाहर थोड़ा गैस रख के हम लोग बनाते हैं। तो 2 मेंबर यहाँ कंटिन्यू रहते हैं, बाकी मेंबर हमको घर से मिलेट का आइटम, काकरा पीठा, अरसा पीठा, नमकीन, कुकीज, मिक्सचर, ये सब बना के उन लोग हमको देते हैं, हम यहाँ सेलिंग कर देते हैं। तो आप लोग का मतलब मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है? मतलब जब आपने खोला तो जो फेडरेशन है वहाँ से आप लोगों को फंड मिला? नहीं मैम, फंड कुछ नहीं है। टेंडर में हमको सिर्फ मिलेट आउटलेट शॉप मिला था। फंड जो है हम लोग एसएसजी 10 मेंबर को मैं बैठाई, उन लोगों से बात करी टेंडर डालने से पहले ही। तो वो लोग बोले कि हम कंटिन्यू दुकान जा नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, चल के आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, गाड़ी सभी के पास नहीं है। तो उन लोग बोले कि आप सेक्रेटरी हैं, आप चला सकती हैं, आप चलाइए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं बोली ठीक है, आप लोग अगर घर से बना के दे सकते हैं आप घर से दीजिए, जो उसका पैसा है मैं आप लोग को दूंगी, बाकी जो हमारा प्रॉफिट है उससे हम कुछ सामान मंगाते हैं। मेंबर एक है जो आती कंटिन्यू, उसकी सैलरी है मंथली। तो कितना खर्चा हो जाता है मंथली अप्रोक्सीमेट? मंथली हम लोग लिखते हैं डेली, जो हमारा किराने का सामान है वो अलग, जो मतलब अंदाज से अगर हम लोग की सेलिंग अभी इस मंथ की 1,33,000 था, तो उसमें हमारा खर्चा हुआ था 94,000, यानी 30,000-35,000 बच जा रहा है प्रॉपर। हम दोनों 3 मतलब जो मेंबर हैं जो दे रहे हैं उनको तो मैं देती हूँ घर में, उनके पैसे उनको दे देती हूँ। यहाँ जो हम कुकीज और बाकी जो आइटम कुछ बना के बेच रहे हैं, मांडिया लस्सी हुआ, मांडिया पकौड़ी, मांडिया आलू चॉप, ये सब का जो प्रॉफिट है वो हम रखते हैं। यहाँ की रिपेयरिंग में अभी इलेक्ट्रिक लगाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल, और यहाँ जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं हम उससे मेंटेन करते हैं। तो अभी क्या पहली बार अपने घर से बाहर निकल के आई? जी, मैं मतलब बहुत ही ऐसे घर की ब्राह्मण परिवार की जो बहुएं बाहर नहीं निकलती। फर्स्ट अपने घर की फैमिली में मैं ही पहली बहू हूँ जो घर से निकल के काम कर रही हूँ। बट आई एम प्राउड ऑफ मी, क्योंकि अब मेरा खुद का नाम हो चुका है। अभी तक लोग मेरे को शुक्ला सर की वाइफ के नाम से जानते थे, अब पुष्पा शुक्ला मिलेट आउटलेट की मेंबर इस नाम से जानते हैं। तो मेरा जो नाम है वो आगे बढ़ा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मैं अपने सरकार नवीन सरकार जी को, नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मतलब लेडीजों को सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हेल्प मिलेगा अगर हम कुछ चाहेंगे। अभी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम नहीं कंप्लेन करते। बाकी ऐसे हमको ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है वो तो ऑफिशियली ही दिया जा रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसके थ्रू ही हम लोग जान पाए कि मिलेट से हम कितने आइटम बना सकते हैं। लोग अभी आश्चर्य होते हैं कि मिलेट से आलू चॉप, मिलेट से कटलेट, मांडिया लस्सी सादा लोग पीना जानते थे नमक या शक्कर करके, हम उसमें कुछ मतलब बढ़ा के उसमें पुदीना अदरक ये सब डाल के हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया। तो लस्सी बना के लोगों को पिला रहे, लोग खुश हो रहे हैं कि चलिए आपको कुछ नया आइटम मिल रहा है। और आपने क्या पढ़ा, क्या हुआ है? मैं +2 मतलब 12th करी साइंस में। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई इसलिए मेरा एजुकेशन रुक गया।
उसके बाद मैं 20 साल घर में रही। अभी ये निकल अभी 3 साल हुआ। तो अब निकली कैसे? निकली, मेरे हस्बैंड ही मेरे को प्रोत्साहित किया इसके लिए, बोले अब गुड़िया बड़ी हो गई है, घर में रहोगी क्या करोगी, जब ग्रुप हो रहा है तो करके देखो। पहले घर के लोग ऑब्जेक्शन किए कि हमारे घर की बहुएं नहीं निकलती, तुम कैसे करोगी, मैं पर हस्बैंड बोले नहीं करेगी। अभी मेरी सासू थोड़ा ओल्ड विचार की तो हम लोग नहीं निकालते थे, पर हस्बैंड सपोर्ट किए। उनके सपोर्ट से ही मैं एटीसी में कैटरिंग का काम सबसे पहले करी, वहाँ से लोग जानने लगे, मैं बाहर का सब कुछ समझने लगी। तो फिर हस्बैंड बोले टेंडर निकला है, डालोगी, कर पाओगी, मैं बोली हाँ। तो फिर डाले, तो कंटिन्यू 1 ईयर से हम लोग ये शॉप चला रहे हैं। बाकी मेंबर पीछे हट चुके कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे तो लेकिन मेरे में कुछ है, मतलब इच्छा करने की भी, इसलिए मैं चला रही हूँ, जब तक चला सकूंगी चलाऊंगी। Only recently, Bhavani Patna got its first smart park, which is operated and maintained by women. The transformation of Kalahandi, according to district administration officials, started in the late 1990s after completion of the Indravati irrigation project. The production of rice, paddy, millets and cotton here has seen an exponential growth since. Vishweswar Sahu, Kalahandi Chief District Agriculture Officer, told the print that while 238,000 metric tons of rice was produced in Kalahandi in 1995, the number rose to 8,80,985 metric ton during Kharif 2023. Irrigation has played a major role in Kalahandi's transformation, the official said. Bumper harvest enabled the Food Corporation of India to procure 78,25,000 metric ton of rice from Kalahandi during financial year 23-24, up from 2,84,000 metric ton in financial year 2000, says a second district administration official, adding that this was the second highest in the state. According to Sahu, farmers in Kalahandi started growing more than one crop after 2000, and now the situation has reversed completely. However, despite the development, authorities have not been able to check large-scale migration of labour from Kalahandi. Coupled with lack of jobs, it has become a growing concern for administrators, politicians and policy makers. Migration is still happening. A sizable chunk of people from Kalahandi still migrate to Hyderabad, Chennai, Surat in search of better options. There is hardly any industrial development in the district. That is perhaps why this election season migration is a burning issue in the state. In Kalahandi, the BJP dropped its incumbent MP Basant Panda and fielded Malvika Kesari Dev against Biju Janata Dal's Lambodar Niyal, both of whom are promising expedited development and job creation. But it remains to be seen whether Kalahandi can retain this rate of progress over the coming decade to ensure an even brighter future for its residents.